بیسیکلی میں ایک حکیم ہوں اور میں حکمت کر رہا ہوں آفٹر ڈیڈ مائی ڈپلوما. ڈیپ انسائٹ ایک بات تھی مجھے ایک ایسے بزنس کی تلاش تھی کہ مجھے فزیکلی نہ بیٹھنا پڑے. ایک کامرس بائی انیبلرز کا گروپ جوائن کیا میں نے اپنی طرف سے بیسیکلی 2 ماہ کی انوینٹری منگوائی تھی، لیکن ان کی جو ABR انیبلرز کا ایک کرائٹیریا ہے پروڈکٹ کو رینک کرنے کا، وہ اتنا خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ میں تقریباً میری فرسٹ پروڈکٹ 35 دنوں میں آؤٹ آف سٹاک ہوا. سر آپ کی منتھلی ارننگ اس وقت کتنی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، میری منتھلی انکم جو ہے وہ 5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک سردار جی ہیں، اندرجیت سنگھ صاحب. یہ حکمت کا کام کرتے ہیں اور ایک حکیم بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ای کامرس کے ذریعے ارننگ سٹارٹ کریں. بزنس کرنے کا جذبہ تو تھا ہی اور انہوں نے ای کامرس کی طرف آنا چاہا. ای کامرس میں آئے اور اپنا کام کیا. پرائیویٹ لیبل بزنس آنر کے طور پہ اپنا کام کر رہے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کون سے سکلز ہیں جو پرائیویٹ لیبل بزنس کے لیے چاہیے اور منیمم انویسٹمنٹ کتنی ہو تو آپ بھی پرائیویٹ لیبل بزنس میں آ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ اندرجیت سنگھ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ حکمت کا کام بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سوچا کہ میں ای کامرس کی طرف آؤں جو کہ بالکل ایک منفرد چیز ہے جس میں آپ نے کام کرنے کا سوچا. یہ خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ جی تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. بیسیکلی میں ایک حکیم ہوں اور میں حکمت کر رہا ہوں آفٹر ڈیڈ مائی ڈپلوما. اور حکمت کے بعد میں حکمت کر رہا تھا اور اس میں مجھے ایک خیال آیا، ڈیپ انسائٹ ایک بات تھی کہ میں نے بزنس کرنا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ میں الگ بزنس بھی میں نے کیے ہیں اور اس کو میں نے مینیج بھی کیے، لیکن مجھے ایک ایسے بزنس کی تلاش تھی کہ مجھے فزیکلی نہ بیٹھنا پڑے. میں فزیکلی جہاں بھی ہوں تو وہ میں بزنس کو مینیج کر سکوں. تو مجھے جب ریئلائز ہوا کہ ای کامرس ہی ایسا بزنس ہے جو آپ جہاں پہ مرضی بیٹھ کے آپ اس کو کر سکتے ہیں بیسیکلی. جب میں نے اس پہ سرچ کی اور مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ آگے جو دور ہے وہ ای کامرس کا ہے، میں نے اس پہ اپنی ایک سرچ جاری رکھی. 2 سے 2.5 سال میں نے اس پہ سرچ کیا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ انیبلرز کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوئے اور پھر پرائیویٹ لیبل بزنس میں کیسے آئے؟ جی اسی طرح جب میں اپنی سرچ کر رہا تھا، میری سرچ جو 2-2.5 سال سے چل رہی تھی، میں نے اسی طرح قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ایک سکسیس سٹوری دیکھی یہاں پہ. تو مجھے ایک ہوپ فیل ہوئی کہ یہ وہی چیز ہے شاید جسے میں 2-2.5 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں. تو میں نے پوری پراپر جتنی بھی ویڈیوز ہے سکسیس سٹوری میں نے دیکھی، اس سے میں اور موٹیویٹ ہوتا رہا. میں نے پھر انیبلرز کا گروپ جوائن کیا، ایک کامرس بائی انیبلرز کا گروپ جوائن کیا. میں نے ان کی ساری دیکھی ویڈیوز دیکھی، میں نے ان کا سب کچھ جب دیکھا تو مجھے فیل ہوا کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے. جب میں لاہور آفس انیبلر سے ان سے ملا تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور لکیلی میں تقریباً اکتوبر 2020 میں ان سے ملا، اکتوبر مڈ میں. تو اکتوبر کے اینڈ میں پرائیویٹ لیبل بوٹ کیمپ سٹارٹ ہونے والا تھا. تو مجھے انہوں نے گائیڈ کیا کہ بیسیکلی یہاں پہ 3-4 انکم سٹریم ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں انویسٹ کرنا چاہتے تو آپ پرائیویٹ لیبل کر سکتے ہیں. اگر آپ کم پیسے انویسٹ کرنا چاہتے تو FBA ہول سیل کر سکتے ہیں. اگر آپ پیسے انویسٹ نہیں کرنا چاہتے، VA بننا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے سکل سیکھیں، پھر اس کے بعد آپ دوسرے لوگوں کو سروسز دے کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں تو انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اس بزنس میں، کیونکہ میں تو 2-2.5 سال سے اس پہ سرچ کر رہا تھا. تو اکتوبر کے اینڈ میں کورس شروع ہونے والا تھا. ہمارا کورس شروع ہوا نومبر کے سٹارٹ میں اور دسمبر کے اینڈ میں 2020 میں ہمارا کورس اینڈ ہوا. جنوری میں میری پروڈکٹ ہنٹنگ سٹارٹ ہوئی اور میں نے ساتھ ہی سورسنگ چائنا سے سورسنگ کی ماشاءاللہ. اور میں
फरवरी के 21 को मैं लाइव हुआ। मैंने अपनी तरफ से बेसिकली 2 माह की इन्वेंट्री मंगवाई थी, लेकिन इनकी जो ABR इनेबलर्स का एक क्राइटेरिया है प्रोडक्ट को रैंक करने का, वो इतना खूबसूरती के साथ इन्होंने डिज़ाइन किया है कि मैं तकरीबन मेरी फ़र्स्ट प्रोडक्ट 35 दिनों में मैं आउट ऑफ स्टॉक हुआ, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। बेसिकली मेरा इनेबलर्स को चूज़ करने का यही मकसद था। मैंने पहले भी 1-2 ग्रुप्स को भी ज्वाइन किया था, मैं फ़िज़िकली 1-2 कंपनी से भी मिला था ई-कॉमर्स के बारे में कि मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, लेकिन जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था, जो सेटिस्फेक्शन होती ना, वो मुझे नहीं मिल रही थी। मैं कोई ऐसे मेंटोर या मैं उस्ताद ढूंढ रहा था जो खुद भी फिज़िकली बिज़नेस करता हो और वो भी मुझे सिखाए। और जब मैं इनेबलर्स में आया, वो सारी मुझे जो चाहिए थी वो सारी मुझे मिली कि इनके जो मेंटोर है, इनके जो टोटल मैनेजमेंट है, ये खुद बिज़नेस कर रहे हैं, और अगर आप कहीं पे स्टक होते तो ये आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये खुद ही परफॉर्म कर रहे हैं फिज़िकली। तो जब हम कर रहे हैं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती तो सर खुरम साहब मेरे मेंटोर थे। खुरम साहब ने मुझे एक स्टूडेंट कम और एज अ ब्रदर ज़्यादा डील किया है। सर, जब आप प्राइवेट लेबल बिजनेस में आए, सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको किस जगह पे महसूस हुई? प्रोडक्ट हंटिंग में, रैंकिंग में, कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है? जी देखें अली भाई, जब आप एक काम शुरू करते हैं, रियल बिज़नेस या लॉन्ग टर्म बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। ठीक है। कोई भी बिज़नेस वेरी फर्स्ट डे से ऐसा परफॉर्म नहीं करता जैसे हम सोचते हैं। सो अगर आपका रोड मैप क्लियर हो, आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो गाइडनर हैं, आप उनकी बात मानें, वो आपको जो गाइड करते हैं आप उनकी बात मानें और उनकी गाइडनेस के साथ चलें, और आपके बैक पे सपोर्ट हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, तो कोई भी मुश्किल, देखें ना बिज़नेस में मुश्किलात तो आती है, लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट है, अगर आप उनके बातों के मुताबिक गाइडनेस के मुताबिक चल रहे हैं, तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल जो है माशाल्लाह वो ईज़िली हल हो सकती है। सर, जो लोग प्राइवेट लेबल बिजनेस में आना चाहते हैं, उनको मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और क्या स्किल सेट उनके पास होना चाहिए ताकि वो कामयाबी से इसमें आके अपना काम कर सकें? जी देखें, सबसे पहले तो आपका सवाल है कि कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। अगर आपने US में काम करना है तो आपको 15 से 20 हज़ार डॉलर रिक्वायर्ड है। अगर आपने UK में काम करना है तो आपको 15,000 पाउंड रिक्वायर्ड है एक प्रोडक्ट को एक टॉप पे लेके जाने के लिए। जो लोग प्राइवेट लेबल बिज़नेस में आना चाहते हैं, बेसिकली मेरी कुछ सजेशन है उनके लिए कि सबसे पहले आप कोर्स में एनरोल बिल्कुल ना हो। आप सबसे पहले जो EVS इनेबलर्स का वीडियो सीरियल है, जिसमें तकरीबन 80 से ज़्यादा कोर्सेज़ है, तो हम स्पेसिफ़िकली अमेज़ॉन पे बात करें, उसमें प्राइवेट लेबल का भी कोर्स है। आप उनकी प्रॉपर वीडियोस देखें। जब आपको बेसिक चीज़ों की पता लगे कि बेसिकली बिज़नेस है क्या, मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसके बाद आप एक अपना गोल बनाएं। फिर आप उसके बाद एक अपना गोल बनाएं कि अगर मैं प्राइवेट लेबल का बूट कैंप ज्वाइन कर रहा हूँ, आज मैं इधर हूँ, तो आज से 6 माह बाद मैं खुद को कहाँ पे देखता हूँ। उसके लिए आपका पैशन और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैशन और डेडिकेशन इतना रिक्वायर्ड है कि आप टाइम देख के काम ना करें, अपना काम देख के आप अपने टाइम को मैनेज करें। ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेशेंस लेवल। इसमें आपका पेशेंस लेवल, आप में सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कि आप फिज़िकली पाकिस्तान में बैठे हैं, उसके बाद आपकी जो कंपनी है वो कहीं और पे बेस्ड है, आपकी सोर्सिंग पाकिस्तान से या चाइना से हो रही है, फॉरेन कंट्रीज़ में है, आपकी सेलिंग जो है वो अलग कंट्री जहाँ पे आप बिज़नेस करना चाहिए, आपकी सेलिंग अलग कंट्री में, लेट्स सपोज UK, US या कहीं पे भी, तो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स इसमें आती हैं। आपका पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, और सबसे मेन चीज़ अली भाई, हार्ड वर्किंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। जी। अगर आप में पेशेंस लेवल नहीं है, आप में सब्र नहीं है, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं कर सकते, तो प्राइवेट लेबल बिज़नेस आपके लिए नहीं है। सर, मुझे ये बताएं कि आप काफ़ी अरसे से इनेबलर्स के साथ अटैच हैं, ग्रुप्स में भी मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है और सबसे ज़्यादा सवाल लोग क्या पूछते हैं? जी बेसिकली जो हमारा ग्रुप है ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स का फेसबुक पे, वहाँ पे डेली के काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, और माशाल्लाह अभी 6 लाख से ज़्यादा हमारी एक फैमिली कम्युनिटी बन गई है।
वहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाला यही है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बेसिकली आप सबसे पहले ओवरव्यू करें कि अगर मैं अमेज़ॉन पे बिज़नेस करना चाहता हूँ तो इसमें कौन कौन से इनकम स्ट्रीम है। उसमें एक प्राइवेट लेवल है, प्राइवेट लेवल के लिए आपको 15-20 हज़ार पाउंड या डॉलर इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप पैसे कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए FBA होल सेल है, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट भाई हैं, जो हमारे घरों में बहनें हैं, वो कहते हैं कि हम पैशनेट हैं, हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इन्वेस्ट नहीं है, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम पैशनेटेड डेडिकेशन के साथ हम काम कर सकते हैं। तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो VA है। VA वर्चुअल असिस्टेंट है जो काम अपनी स्किल्स सीख के अपनी स्किल्स लोगों को प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकता है। बेसिकली ये 3 इनकम स्ट्रीम है अमेज़ॉन में। आप सबसे पहले ये देखें कि आप कौन सी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया में जिस क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं EVS पे आप उनकी प्रॉपर वीडियोस देखें। जब आपको बेसिक नॉलेज समझ आ जाएगी उसके बाद आपको एक मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है कि जहाँ पे अगर आप स्टक हो तो आपको हेल्प आउट करें। सो इट्स वेरी इजी कि सबसे पहले आप ई-कॉमर्स का ग्रुप ज्वाइन करें, उसके बाद आप क्राइटेरिया देखें कि आप कौन से बिज़नेस मॉडल में जाना चाहते हैं, उसके बाद आप EVS में वीडियोस देखें, उसके बाद आप एक प्रॉपर कोर्स लें और आप इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। सर आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? जी अल्लाह का शुक्र है, मेरी मंथली इनकम जो है वो 5 लाख के राउंड अबाउट है। सर साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो चाहते हैं कि लोगों को एनेबल किया जाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ही इज़ अ डायमंड पर्सन। देखें, अगर एक आदमी सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक आदमी अगर अपना सब कुछ छोड़ के लग्जरी लाइफ छोड़ के अपना कंफर्ट जोन छोड़ के यही सोच के आता है कि मैं अपने पाकिस्तानी को इनेबल करूं। सर साकिब अज़हर साहब का गोल है कि 2023 तक 20 लाख लोगों को और 2 लाख ई-कॉमर्स के बिज़नेस हमने स्टेबल करने हैं। 20 लाख लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयर बनाना है कि वो लोग खुद अपने लिए काम करें। 20 लाख का मतलब देखिए अली भाई, अगर एक आदमी को आप गाइड करें और वो आपकी वजह से कामयाब हो तो ये कितनी बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे बात हो रही 20 लाख लोगों की। 20 लाख लोग अगर कामयाब होंगे तो इसका मतलब है कि 20 लाख फैमिली खुशहाल होंगी। 20 लाख फैमिली खुशहाल होने के साथ आप एक तो इनकी फ़ायदा देखें, सेकेंडली आप ये देखें कि इसके साथ पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। जब 20 लाख लोग 2 लाख ई-कॉमर्स के बिजनेसेस होंगे, 20 लाख लोग ई-कॉमर्स पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लोगों को, तो इसमें लोग फॉरेन कंट्रीज़ में काम करेंगे। इस तरह हमारे पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस आएंगे जिससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो आई थिंक इस दौर में एनेबलर्स और साकिब अज़हर पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए गॉड गिफ्ट या ब्लेसिंग से कम नहीं है मेरे ख्याल में। सर कासिम अली शाह साहब के आपने काफ़ी वीडियो लेक्चर सुने हुए हैं, उनसे आप बड़ा इंस्पायर हैं, आप उनके बारे में बात भी करना चाहते थे, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहते थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, जैसे हीरे का कोई मोल नहीं होता, नेकियों का कोई तोल नहीं होता। कासिम साहब आपकी तरह हर इंसान अनमोल नहीं होता। मैंने बेसिकली मेरे लिए काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं सर कासिम अली शाह साहब। जब मैं अपनी सर्च कर रहा था तो मैंने ऐसी एक सक्सेस वीडियो देखी थी तो मैं उनसे मोटिवेट हुआ था। अच्छा। तो मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया और मेरी रसाई इनेबलर्स तक गई इनकी वजह से। कासिम शाह साहब आपको ज़ाती ज़िंदगी में और बिज़नेस ज़िंदगी में दोनों मोटिवेट करते। ही इज़ अ बूस्टर फॉर न्यू जनरेशन आई थिंक। तो मैं यहाँ पे एक ही बात सर कासिम साहब के बारे में कहूँगा कि आई रियली सॉल्यूट हिम कि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं। ये बेसिकली बहुत बड़ी सेवा है, लोगों की खिदमत है। किसी को अगर आप अच्छा रास्ता दिखाते हैं तो मेरे ख्याल में देखें ना, अल्लाह ताला ने हमें किस चीज़ के लिए पैदा किया है, इसी चीज़ के लिए कि हम एक दूसरे की हेल्प आउट करें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत सिंह साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने बहुत प्यारी गुफ्तगू की। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो प्राइवेट लेवल बिज़नेस में आना चाहते हैं वो इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।